Okay, let's start. Can we start now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So in the last class, we basically spoke regarding that different type of models. Okay. And as far as today's class is concerned, we'll start with now. So in the last class, I told you like about we took a case where we are saying whether the person is exposed or not, if whether exposed or not, and if exposed, whether the person is diseased or not, right? So we so n is equal to a plus b plus c plus d, where a plus b is the exposed category, C plus D is the non-exposed category, A plus C is the disease category, and B plus D is the non-disease category. Okay, so we all discussed over here. Now, coming on to this, see, this chi-square test, so there are different type of tests, but before you understand different type of test, see, for any research to be done, what you need is data. Okay, for any research to be done, what you require is data. So all the data, it is very important. So all the data in the world are being divided into 4 categories. Okay. So whether it's a nominal data, N stands for nominal, O stands for ordinal, I stands for interval, and R stands for ratio data. So nominal, ordinal, interval, ratio. Now what is a nominal data? Nominal data are like yes and no category. Do you have disease? Yes. Do you don't have disease? No. So this is a means a nominal data. Okay. So like suppose if you, what is your blood group? Whether it is A, B, AB, okay, or O. So like this, so there is a discrete category. Your answer is going to be either one of the category. For example, like which house do you belong to? Whether you belong to Rabindranath Tagore house, whether you want to belong to Sachin Tendulkar house. So like this, you said out of 100 people, 50 people belong to Rabindranath Tagore house and 50 people. So this type of a data is the nominal data. Is it clear to everyone? What is the nominal data? Yes, sir. Okay. So this is a nominal data. Now next category is coming on to the, I will come to the ordinal data. Now, what is an ordinal data? Now, it has got an order. What is an order? For example, I say, how much is your pain? 0 means no pain, and 10 means very severe pain, what I have ever suffered in my life. So from 0 to 10, I have got 10 categories. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now, suppose if I say, how much is your pain? I am asking some person, the patient has come to me with a shoulder problem. He is suffering from frozen shoulder. Now, in frozen shoulder, what happens? The patient is unable to lift the arm and there is pain. So now if it can be a complication of diabetes in sometimes, but usually it is a condition where the pain happens. Now the patient has come to me and I ask the patient. So this type of a scale is known as the VAS. This scale is known as VAS. What is the full form of VAS? Visual analog scale. Visual analog, ANALOGU, analog scale. This VAS is basically used to measure the intensity of pain. Okay, it is used to rate pain. How much pain do you have? So that is VAS. Okay, so now I am asking is how much is your pain? So I have got a category. So 0 means no pain and 10 means, so suppose the patient number 1, he comes and tells me, okay, the pain I have is 7. Okay, now I give him treatment. After treatment, suppose 4 days of treatment, now the patient, I ask the patient again, how much is how you are feeling now? How much is your pain? How much will you score now in this category? So he will say now the pain is 3. So that means there is a difference of 4. The pain has decreased by 4. Okay, so that type of a category is an order. For example, I take another example. For example, your salary. So how much is your salary? Whether it is from 0 to 10,000, 10,000 to 20,000, 20,000 to 30,000, 30,000 to 40,000, 40,000 to 50,000, and more than 50,000.
So I've got these categories, but there's an order in this, because less means the pain is less, or less means your salary is less. And if you rate 50,000, that means your salary is more. Okay, so there's an order. So that's why nominal, ordinal. Ordinal means order. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. So this is the second category, which is known as ordinal. Third is the interval. Now in interval, for example, if I am saying, okay, take the range of motion for the knee. How much of the range of motion? 0 to 135 degree. So I will say the knee from this position, if it bends to this position. So now this is a straight knee when your knee is in extended form. Now from extension, the knee you are going to do flexion, but here after 135 degree, what will happen? It is not going to bend more. Now this type of a category, now I will say, like suppose after injury, the range of motion of the knee joint is say 30 degree. After treatment, now it became 40 degree. Okay. Similarly, in patient number 2, the range of motion was say 70 degree. After treatment, it became 80 degree. So can I say 70 minus 30 degree is equal to 40 minus 10 degree? For 50 minus 10 degree? Can I say so? Yes. Yes, guys. What is your answer? Sir, I actually didn't get it. Can you explain it again? Okay, I'll explain again. I am saying I am a researcher, right? So I am a researcher, and I want to say, like, I am trying to see the effect of treatment A versus treatment B in knee Okay. osteoarthritis, OA of knee. Okay. Now I have got 10 patients in category A and 10 patients in category B. And I'm measuring whether treatment A is good or treatment B is good. And one of the outcome measure is the range of motion of the knee. Okay, And sir. then when I am checking it, I am saying patient number 1, suppose the patient knee was bending up to 30 degrees. After treatment, like up on 4th day when I measured the knee, now it is coming 70 degree. In patient number B, the range of motion which was coming to be 90 degree. Now after treatment, the range of motion is coming to be 130 degree. So can I say 70 minus 30 degree is equal to 90 minus 130 minus 90 degree? No, sir. Why? Sir, in both the patient, like in both the groups, there is a difference between the, what problem they had. There is a bit No, difference between. they have got the same case. When one case So is of it's the same, osteoarthritis, sir. There's no difference. They got the same result. they have got the same disease. Okay. But in Yes. patient number 1, the range of motion was 70 degree, was 30 degree. After treatment, when you give the treatment for 4 doses, it becomes 70 degree. In patient number 2, when you asked how much your knee is able to bend, how much you are able to bend, the patient said, I can bend up to 90 degree. After treatment, he can bend up to 130 degree. So can I say 70 degree minus 30 degree is equal to 130 minus 90 degree? Can I say yes or can I say no? If Yes, yes, you can say that 70 degree minus 30 degree is equal to 130 minus 90 degree, right? yes, sir. Why? So because the result is the same. The They result is got the the same. treatment and the result they got is the same. Okay, but how about already the second patient was able to move the knee up to 90 degree, but the first patient was able to move the knee up to 30 degree. So how they are same? One is having 30 degree, other is having 90 degree. So already the other patient was having more range of motion.
as compared to the first one, Right, sir. isn't it? Okay, sir. But still, how can I say that yes, the improvement is the same? So because the difference between both the groups is same 40 degrees. Okay, you are saying the difference between the same is same. Okay, okay. What else? But this is not the answer. The answer is something else. Yes, what you are saying is absolutely right. Because okay, because the person who is having the first one, yes, the transformation or the change in the angulation is more. It has increased by 40 degrees in both the cases. Yes, but then why it is so? Why it is so that I can say 70 minus 30 degrees equal to 130 minus 90 degrees? And what about the other aspects? Yes. Anyone? Okay, because all the human beings, when it comes to the knee, their range will be from 0 degree to 135 degree. Whether you take an American or an Indian or a Pakistani or a Bangladeshi or a Chinese or a Russian, isn't it? Do all, human beings have got different range of motions? No, sir. They will have the same range of motion for that particular joint, right? Yes. So that's why. But if suppose I have taken this case for VAS, and I would have said, like, the patient number 1 came and I said, okay, how much is your pain? He said 9. And then I give him treatment. After 4 days of treatment, now I ask him, how much is your pain? He said 2. He says 4. Now patient number 2 came. I told him, how much is your pain? So he said, my pain is 4. Now I asked him, how much is your pain? He said 0. So in the first case, it was 7 minus 3. Now in this case, it was 4 minus 0. So can I say A is equal to B in VAS? How much of pain improvement is there? Can I say 7 minus 4 is equal to 4 minus 0? Yes or no? Same like in as far for range of motion. Are you able to understand my question? आपको समझ आ रही है मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से? हाँ जी, yes or no? पूरी तरीके से तो क्लियर नहीं है, नॉट फॉर क्लियर. पूरे तरीके से क्लियर नहीं है. अच्छा, मैंने आपको कहा, मैंने 2 सिनेरियो ले लिए. सिनेरियो नंबर 1 में मैंने कहा कि भाई आप विजुअल एनालॉग स्केल से पेन नाप रहे हैं. दूसरे सिनेरियो में आप रेंज ऑफ मोशन नाप रहे हैं. दोनों केसेस में पेशेंट आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के. अब भाई ज्यादा दर्द होगा तो घुटना भी तो कम मुड़ेगा. तो इस केस में पेशेंट नंबर 1 ने कहा, मेरा पेन भैया था पहले 7, अब हो गया है ट्रीटमेंट के बाद में 4. पेशेंट नंबर 2 ने कहा, भाई मेरा दर्द था पहले 4, अब हो गया 0. यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन के केस में पेशेंट नंबर 1 ने कहा, मेरा पैर मुड़ता था पहले 30 डिग्री, अब मुड़ता है 70 डिग्री. पेशेंट 2 ने कहा कि भैया पहले मेरा पैर मुड़ता था से 90 डिग्री, अब मुड़ता है 130 डिग्री. 130 डिग्री. तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने कहा 7 minus 4 is equal to 3 minus 0. 7 minus 4 is equal to 3 minus 0, मतलब 3 स्टार्टिंग में पेन था, अब 0 हो गया. और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 70 minus 30 is equal to 130 minus 90. Can I say so? पेन के केस पे. No, sir. क्यों? So because the second patient is 100% cured, उसका pain 0 हो गया है. तो From 3 to 0 हो गया है, and the second अच्छा चलो patient. मान लो, अच्छा चलो मान लो मैंने कहा सेकंड पेशेंट का पेन था 8, ठीक है. जी.
और अब हो गया 5, चलो 0 हटा दो। अब अच्छा। मैंने कहा पहले पेशेंट का था 7 था, ट्रीटमेंट के बाद में 4 हो गया। अब दूसरे पेशेंट का पहले 8 था, ट्रीटमेंट के बाद 5 हो गया। पहले के केस में जो रेंज ऑफ मोशन था वो 30 डिग्री था, इम्प्रूवमेंट 70 तक चली गई घुटना। दूसरे केस में क्योंकि उसका 8 था, अब उसके उसके केस में क्या था, अब घुटना मुड़ता था 90 डिग्री, अब चला गया 130 तक। तो कैन आई से 7 - 4 इज इक्वल टू 8 - 5 फॉर पेन? नो आइडिया सर। अच्छा, फिर भी टेक अ गेस। जैसा आपने रेंज ऑफ मोशन में बोला, आपने बोला हाँ जी सर बिल्कुल दोनों में इम्प्रूवमेंट सेम है। जी। तो पेन के केस में हम क्या बोलेंगे? इम्प्रूवमेंट सेम है, नहीं है सेम? सर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर एक का पेन तो पूरे तरीके से वैनिश हो गया है, दूसरे में पेन है अभी, भले ही नहीं वो तो 4 मैंने तक आ मैंने तो गया। कहा ना कि दूसरे वाले के केस को 3 - 0 मारो गोली। मैंने कहा पहले उसको पेन था पहले 8, अब हो गया 5। पहले वाले में था 7, अब हो गया 4। समझ रहे हो मेरा सवाल? जी सर, दोनों पेशेंट्स में पेन का डिक्रीज इज द सेम, लाइक डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द पेन इज द सेम। ओके, सो इम्प्रूवमेंट मैं बोलूंगा इम्प्रूवमेंट सेम है दोनों जी, में। इम्प्रूवमेंट ये सेम है दोनों में। सेम है। अच्छा, और रेंज ऑफ मोशन में रेंज ऑफ मोशन भी सर सेम ही है। इम्प्रूवमेंट सेम है। यस सर। ओके ओके, तो कितने जने एग्री करते हैं इस बात से? कितने जने एग्री करते हैं इस बात से? तो मैं सर आई अच्छा, ऑल्सो, मैं भी। और यस अब्दुल, तुम भी एग्री कर रहे हो? यस सर। ओके, और अक्षय? हाँ जी अक्षय, आप भी एग्री कर रहे हैं? ओके भाई, पेन के केस में इट इज नॉट द सेम, वेयर एज रेंज ऑफ मोशन के केस में द इम्प्रूवमेंट इज द सेम। द क्वेश्चन कम्स व्हाई, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है ऐसा क्यों? जो इम्प्रूवमेंट आप पेन के केस में बोल रहे हो, इट इज नॉट सेम फॉर पेशेंट नंबर 1 एंड पेशेंट नंबर 2, बट एज फार एज द रेंज ऑफ मोशन it is same for the improvement, same for patient number 1 and patient number 2. The question comes why? हाँ जी, कौन बताएगा? अब ये why का क्या उत्तर है? क्योंकि काई स्क्वायर समझाने के लिए पहले तुम्हें डेटा समझाना पड़ेगा। डेटा कैसे? हाँ जी, सवाल मेरा समझ आया नहीं समझ आया? सर क्योंकि इससे पहले वाले केस में एज यू सेड कि रेंज ऑफ मोशन एवरी ह्यूमन बीइंग का सेम होता है, हाँ जी, लिमिटेड सेम रेंज ऑफ मोशन होता है। हाँ, बट पेन, पेन, सो पेन तो वेरिएबल है सर कि पेन तो पेन क्या हुआ फिर अगर नॉट रेंज ऑफ सेम सर, मोशन? नॉट सेम सर। नॉट सेम, हाँ जी बिल्कुल सही। बिकॉज पेन इज अ सब्जेक्टिव फिनोमेना। आपका कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत चोट लगी होती है, कम महसूस करते हैं, वो कह रहा है भैया कुछ भी नहीं। जैसे आदमी लड़ने के लिए गया आर्मी में, उसको गोली लग गई, उसके बावजूद भी कहता है नहीं घबराने की कोई बात नहीं। वहीं पे एक आदमी का हल्का सा नाखून टूट गया, दर्द इतना नहीं होना चाहिए, पर उसने हाकार मचा दिया, अरे भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दैट मीन्स पेन इज अ सब्जेक्टिव फिनोमेना, whereas range of motion is an objective phenomenon. राइट। Did you get the answer? यस Yes, सर। Abdul, समझ आया? यस सर, समझ आ गया। Yes, अक्षय, क्लियर? तो जब मैं ऑर्डर की बात करूं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इंटरवल मतलब इक्वल, तो आपका रेंज ऑफ मोशन जो है वो ऑर्डिनल का रेशियो मींस इंटरवल का एग्जांपल है। ओके, सो आपका इक्वल नंबर पे वो चीज होती है। और जो फोर्थ है जिसमें हम कहते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर कैन इवन बी मेजर्ड आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, मींस आफ्टर 0। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 99.1, 99.2, 99.3, दैट मींस आप उसको नाप भी सकते हैं
पॉइंट्स में, तो जब आप उसको किसी को डिवाइड करोगे, रेशियो में निकालोगे, तो क्या होगा, आप उसके पॉइंट डेसिमल प्लेसेस के बाद में भी बात कर सकते हैं। जैसे हमने कहा परसेंटेज कितने नंबर आए, 99.2%, 99.3%, तो आपने उसको डेसिमल तक में निकाल सकते हो। तो वो इवन जीरो से भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, मतलब दैट इज एन इंटीजर। ओके, so when you basically do different type of data, so these are the 4 different type of data that we should all know. Okay, ये अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं जो कि आपको मतलब हेल्प करते हैं चीजों को समझने में। इज इट क्लियर? तो अब जब मैंने डेटा तो आपको बता दिया, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, बट इसका टेस्ट से क्या ताल्लुकात, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में बेटा जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर स्टडी। सो स्टैटिस्टिक्स जब आप इसकी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया में 2 टाइप के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। वन इज योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड अदर इज योर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिफाइन करना, उसको 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 डेटा को समझाना। तो उसमें आप डेटा को समझाएंगे कि कितने कितने ओवरऑल कितने पेशेंटों से आपने सैंपल लिया, उनका रिलीजन क्या था, उनके एजुकेशन क्राइटेरिया क्या था, उनका इनकम लेवल क्या था। तो आप ये सब सवाल अपने सब्जेक्टिव फिनोमेना में रख सकते हैं। ओके, और जब आप उसको जब वो देख रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था 2 टाइप के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको डिस्क्राइब कर रहा है उसका मीन कितना है, उसका मीडियन कितना, उसका मोड कितना है, मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, ये हम सब करेंगे बायोस्टैट्स में। जहां तक बात रही इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो हमें ये चीज ना समझना जरूरी है कि जहां पे भी डेटा नॉमिनल और ऑर्डिनल होगा, वहां पे आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेंगे, और जहां पे आपका जो होगा, आपका इंटरवल और रेशियो होगा, वहां पे आपके पैरामीट्रिक टेस्ट लगेंगे। तो यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट लगा है। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना चाहता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो क्या आपको कैंसर हो सकता है? अगर हो सकता है तो कितना % संभावना है ना? तो ये बेसिकली हम एक्सपोजर और डिजीज की बात करें कि एक्सपोजर कितना है, डिजीज कितना है। अब हमका आप कितना स्मोक कर रहे हैं, इससे हम निकालेंगे आप कितना नंबर ऑफ सिगरेट्स पी रहे हैं पर डे। उसके बाद में आप पैसिव स्मोकिंग कितने लोग कितना कर रहे हैं। उसके बाद में आपका ये डिपेंड करता है कि तो आप दिन में कितने डब्बे सिगरेट पी रहे हैं, कितने टाइम में पी रहे हैं, इंटरवल कितना है। तो ये सब एक्सपोजर का पार्ट है। तो ये सब हम जब किसी एक वेरिएबल को हम सोच लेते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पे हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली उस तरीके का टेस्ट होता है जो एक बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। सो काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट योर एसोसिएशन बिटवीन 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ओके, अगर आपके 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, वेरिएबल हैं, वैल्यूज है उसमें, तो इट कैन बी यूज। तो आपको बता रहे हैं कि आपके दोनों के बीच में क्या कोई एसोसिएशन है, ये सब नहीं है। अगर है, इफ देयर इज एन एसोसिएशन, अगर नहीं है एसोसिएशन, तो आप उसको नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। अगर आपका एसोसिएशन है, तो आप उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेंगे। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स हैज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम r -1 इज इक्वल टू c -1, मतलब रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, because r is the number of rows and c is the number of columns. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, तो इस तरीके से हम इसका काई स्क्वायर स्टैट्स निकालते हैं, और काई स्क्वायर स्टैट्स बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का। Yes, is it clear? Yes, sir. Okay, तो काई स्क्वायर टेस्ट जब हम करते हैं, तो हम इसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बेसिकली जो है वो हम समेशन, तो इसको एक्स स्क्वायर जो है वो इसका रिप्रेजेंटेशन है समेशन। इसको समेशन बोला, समेशन मतलब यू हैव टू ऐड ऑन ओ माइनस ई
ओ मतलब ऑब्जर्व कितनी है, ई मतलब एक्सपेक्टेड कितनी है, ओके, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड सेल्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, टोटल रोज कितने हैं, टोटल कॉलम्स को करते हैं, डिवाइडेड बाय द ग्रैंड टोटल, ओवरऑल कितने हैं। तो 2/2 टेबल हम जब निकालते हैं तो हम एक्स बार कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, जिसमें AD माइनस BC डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 2 मल्टी रेज टू पावर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें ए मैंने बताया हुआ था डिजीज कितने हैं, बी बताया हुआ था ये एक्सपोज कितने हैं, नॉन एक्सपोज कितने हैं, ए प्लस, और फिर हमने बोला था डिजीज कितने हैं और नॉन डिजीज कितने हैं। तो ये आपको काई स्क्वायर जो हो गया वो आपको बेसिकली इस तरीके का एसोसिएशन निकाल के बता देगा। ओके, सो तो इंपॉर्टेंस ऑफ काई स्क्वायर, तो आप कब बोलते हैं ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो इसका पी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जब आप इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पी वैल्यू। सो पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। अगर 0.05 से कम नंबर है वैल्यू जो है पी की, तो दैट मीन्स दीज टू फैक्टर्स आर मीन्स कंजॉइंड। ओके, तो अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, अगर बी बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, तो इट हैज गॉट एन एसोसिएशन बिटवीन ईच अदर। और अगर p वैल्यू इज मोर देन 0.05 दैट मींस दिस फैक्टर इज इनसिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? Yes, Is it sir. clear or not? What is the Yes, sir. difference between significant and insignificant? Yes. तो अगर p का वैल्यू 0.05 से कम होगा तो दैट मींस सपोज p की वैल्यू आई 0.021. So 0.021 is less than 0.05. That means when the two variables are significant with each other. Okay, is it clear? So chi-square statistics basically tells us that there is an association. दोनों के बीच में कोई relation है. जैसे age of the mother and weight of the child. तो हमने कहा क्या मदर की एज बच्चे का वेट का निर्धारण कर सकती है? तो किसी ने बोला नो, किसी ने बोला यस। अब रिसर्च क्या बोलते हैं, रिसर्च ने बोला यस, बिकॉज एज अगर माँ की एज अगर कम होगी, नाबालिग होगी, तो दैट मीन्स द वेट ऑफ द चाइल्ड कैन ऑल्सो बी लेस बिकॉज द हर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू बियर अ डिलीवरी। यू गॉट द पॉइंट? तो इसलिए it will tell us whether there is any association. It will tell us how much strong an association is. ये पर हमें ये नहीं बता सकता कि एसोसिएशन कितना स्ट्रॉन्ग, कोरिलेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके अलावा फिर हम आते हैं रिलेटिव रिस्क के ऊपर। रिलेटिव रिस्क क्या होता है? रिलेटिव रिस्क, बिकॉज हम सारी बातें जितनी भी कर रहे हैं वो डिजीज से कर रहे हैं ना, कि डिजीज कितनी अपीयर हो सकती है, डिजीज को कैसे पता करेंगे कि डिजीज है। तो जब हम बात करते हैं कि रिलेटिव रिस्क की, सो रिलेटिव रिस्क बेसिकली विल एक्सप्रेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज इन एक्सपोज्ड ग्रुप। तो रिलेटिव रिस्क हमको ये बताता है कि अगर आप एक्सपोज ग्रुप को ले लें, ठीक है, उसमें कितना परसेंट चांस है कि वो डिजीज होगी, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिस्क। Relative risk. Okay, so relative risk is the risk of developing a disease in an exposed group A plus B. Exposed group कौन सा होता है? A plus B as compared to the non-exposed group, that is C plus D. So A plus B, okay, as compared to, so incidence of risk among exposed group कौन सा हो गया? A divided by A plus B. और risk incidence risk among non-exposed group कितना हो गया? C divided by C plus D. Okay, so they basically, so relative risk मेरा A plus B divided by C plus D. Okay, A divided by A plus B multiplied divided by C divided to C plus D. ये आपको relative risk बता देगा. Is it clear? Yes, sir. Okay, so पर एक हाँ बेटा, है सर, हैं? ये जो रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू A by A plus B, तो सर यहाँ पे A क्या है हुआ? ए हमने बताया ना, ए क्या हुआ, ये देखो, ये Sir, exposed आ गया ना, and ये देखो,
हमने कहा एक्सपोजर यस था या नो था? अगर यस था, दोनों यस यस थे, तो एक्सपोजर जो होगा ये यस था, ए था, ठीक है। तो ए प्लस सी, तो ये एक्सपोज ग्रुप हो गया। तो जिसमें ए मतलब है एक्सपोजर और सी मतलब नॉन एक्सपोजर, और वहां पे ए मतलब है डिजीज्ड और बी मतलब है नॉट डिजीज्ड। तो आपने निकाला यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो आपने कहा ए प्लस सी हो गया एक्सपोज्ड, और दूसरा बी प्लस डी हो गया। क्लियर है? ओके सर, यस सर, क्लियर नाउ? यस सर, ओके, तो इस तरीके से हम इसको, सो व्हाट डज रिलेटिव रिस्क ऑफ टू मीन। ओके, अब मीन निकालता, मीन कैसे निकालेंगे आप? मीन ऐसे निकालेंगे कि आपका सपोज आपके क्लास में आप लोग 10 बच्चे हैं। अब मैंने कहा भाई आलिया के कितने नंबर है 50 में से, मैंने सॉरी आपने कहा आलिया के कितने नंबर है 10 में से, मैंने कहा 5। ओके, उसके बाद में शिवम के नंबर कितने हैं, मैंने कहा 6। फिर मैंने कहा सॉफी की कितना नंबर है, उसने कहा 8। तो आपने कहा 5, 3, 6, 8, इस तरीके से आपने 10 के 10 का लिख लिया, और फिर आपने टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 10 किया, तो आपको एवरेज मिल गया। राइट? यस और नो? यस सर, यस सर, ओके, बट तो आपको ये पता चल गया। तो अब आपने कहा कि मतलब क्लास के अंदर इस तरीके से हैं, तो आपको एक एवरेज वैल्यू आ गई। सपोज एवरेज वैल्यू आई सबकी 6, और टोटल वैल्यू आई आपकी डिफरेंट नंबर्स को मिला के आउट ऑफ 10 आपके पास में आए 100 से 180 190। सो 190 डिवाइडेड बाय आपके 5 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 5 3 15 और 4 5 8 40, तो 38 मार्क्स आपके एवरेज क्लास के मार्क्स। ओके, तो अब हमने कहा कि जितने नंबर किसी के मतलब मार्क्स में कम नंबर कम आना है वो एक अलग बात है, और उसमें फेल हो जाना वो एक अलग बात है। सिमिलरली एक्सपोज होना एक अलग बात है, और एक्सपोजर के वजह से डिजीज हो जाना एक अलग बात। यस और नो? यस यस सर, सो रिस्क इन एन एक्सपोज ग्रुप, जो ऑलरेडी एक्सपोज ग्रुप है उसमें रिस्क कितना है, तो रिलेटिव रिस्क मल्टीप्लाइड बाय रिस्क इन एक्सपोज नॉन एक्सपोज ग्रुप मीन्स ऑफ 2 मार्क्स। ओके, सो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि रिस्क जो है, सो ट्वाइस द रिस्क, सो जो बेसिकली एक्सपोज ग्रुप है उसमें ट्वाइस ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू नॉन एक्सपोज्ड। सो जैसे हमने कहा कि कोरोना ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स नहीं फैलेगा ज्यादा इफ वी आर यूजिंग योर क्लॉथ मास्क और दी मास्क। ओके, जहां पे ज्यादा लोग, सो देयर इज अ रिलेटिव रिस्क ऑफ 2 मीन्स। तो आपने कहा कितना मीन है, 2 मीन्स ऑफ द एक्सपोज्ड ग्रुप इज टू 2 times the higher risk as compared to the non exposed group। तो ट्वाइस हायर होता है नॉर्मल केसेस में एज कंपेयर टू दी नॉन एक्सपोज ग्रुप। इज इट क्लियर? रिलेटिव रिस्क समझ आ गया? फिर यस हमने सर, सर। कहा ये कि हाँ, सर ये रिलेटिव रिस्क लाइक exposed are twice like able to spread the disease or whatever, so हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हर डिजीज में 2 से ही मल्टीप्लाई होगा सर? क्या बेटा, मैं दोबारा से बताऊं, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला तुमने। सर इससे पहले इट वाज लाइक रिस्क, लाइक हमें आरआर निकालने के लिए रिस्क इन एक्सपोज्ड इज इक्वल टू 2 इनटू रिस्क इन नॉन एक्सपोज्ड। सो तो एवरी टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 ओनली? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो निकलता है, वो जब आप उसको इक्वेशन, जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तो वो कैसे निकाले। ये तो ठीक है, सवाल पूछा गया है कि 2 मीन का क्या मतलब है। तो 2 ठीक है मीन सर। का 2 टाइम्स मोर, जो जिनको एक्सपोजर नहीं था, जैसे किसी ने कहा कि अगर अगर आप सपोज कोविड व्यक्ति के संबंध में आए हैं, तो क्या आपको कोविड हो जाएगा? रिस्क कितना है? तो आज में कोई बोल रहा है नहीं, हमारे यहाँ तो ट्वाइस टाइम्स रिस्क है, मतलब हर दूसरे में से, मतलब 50% चांस है कि आपको हो ही जाएगा। बट किसी ने कहा कि भैया 10% चांस अगर आप किसी कॉन्टैक्ट में है। ओके सर। ओके,
जी तो सर। ये तो वो है कि डिजीज एक्सपोज होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी को हो ही जाएगी, गारंटेड हो जाएगी, बट एक्सपोज होने का मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं, ठीक है, कि अब वो है कि मे बी उसके अंदर कुछ और चीजें आ जाती हैं, मे बी उसके मसाले ऐसे हैं, मतलब ही मीन्स व्हाट आई मीन टू से इज कि मान लीजिए कोई आदमी स्मोक कर रहा है, अब स्मोक जो आदमी स्मोक कर रहा है जरूरी नहीं ना कि हर किसी को कैंसर हो ही जाएगा, है ना, वो डिपेंड करता है उसमें कार्सिनोजन के किस प्रकार का है, वो डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसका हो सकता है उसके फैमिलियल हिस्ट्री क्या है, ये है ना, तो वो डिपेंड करता है, तो वो फिर हम जब इसकी इक्वेशन देखेंगे उसके हिसाब से निकल। आज की डेट में तुम्हें मतलब रिलेटिव रिस्क का मतलब समझ आना चाहिए। रिलेटिव रिस्क ऑफ टू मींस द एक्सपोज ग्रुप इज 2 times at a higher risk as compared to the when compared to the non exposed. Is it clear? यस सर। और फिर उसके बेसिस पे हम फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं, उसका भी निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं आऊंगा जब आपको कोरिलेशन रिग्रेशन आपको बताऊंगा तब आपको समझ आएगा। बट नॉर्मल केसेस में हमने कहा कि अगर किसी का वैल्यू अगर 2 है और आर जो है वो 3 के ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स द रिस्क इज हाई। अगर 1.5 से 2.9 के बीच में आ रहा है तो दैट मीन्स द वैल्यू जो आ रही है देन द रिस्क इज मॉडरेट, और अगर वीक आ रही है तो देन दैट मीन्स वो 101.2 से 1.4 के बीच में स्थापित रहेगा, तो देन मीन्स, और इसके अलावा नो कोरिलेशन भी आ सकता है ऐसे फालतू में। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, फिर अगला आ जाता है ऑड्स रेशियो। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, फिर हमने बताया कि इसको किस तरीके से देखा जाता है, फिर आपको रिलेटिव रिस्क आपको पता चल गया है ना, उसके बाद में अब आपका ऑड्स रेशियो। नाउ ऑड्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ ऑड्स ऑफ एक्सपोजर, मतलब इवन और ऑड होता है, ऑड मतलब कि जिसके चांसेस नहीं है, तो रेशियो कितना है ऑड्स का ऑफ एक्सपोजर अमंग द डिजीज टू द ऑड्स ऑफ एक्सपोजर अमंग द नॉन डिजीज। अब जिस आदमी को एक्सपोजर हुआ है उस आदमी के केस में जिसके अंदर एक्सपोजर हुआ है ना, अमंग डिजीज पीपल, तो आपकी 2 कैटेगरी, डिजीज है नॉन डिजीज है। अगर डिजीज है और नॉन डिजीज है तो उसके अंदर बेसिकली कितने % चांस है, मतलब डिजीज के अंदर उस बीमारी का होने का, और उस बीमारी के जिसके अंदर बीमारी नहीं है फिर भी उस बीमारी का होने का। तो एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड हमने ले लिया, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज ले लिया, और हमने रेशियो ऑफ ऑड्स निकाल ली। तो ऑड्स ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू द कॉम्प्लीमेंट। तो ऑड्स का मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को देखता है, ऑड्स रेशियो बेसिकली एक टाइप की प्रोबेबिलिटी है ताकि इसके होने के कितने चांसेस हैं। अब चांस की बात है ना, वो आप बोलेंगे कि अरे भैया इसका कोविड में एक्सपोजर हुआ, बट कोविड में एक्सपोजर होने की वजह से जरूरी तो नहीं ना उसको कोविड हो गया, बट आपने कहा कि नहीं चांस 90% हो जाता है, तो अगर चांस 90% हो जाता है तो आदमी बोलेगा चलो उसका ऑड रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर अगर आप नहीं भी हल्का सा कुछ करेंगे तो उसके बावजूद भी वो चीज हो सकती है सामने वाले। So odds of an event is the ratio of the probability of the event to its complement, कि वो मींस उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है होने की, तो odds is equal to, तो आप देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोज डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला है, PE डिवाइडेड बाय PE नॉट इज इक्वल टू P1 माइनस P। तो ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये फॉर्मूलेज जो है आप धीरे धीरे अभी आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत लगेगी क्योंकि ये फॉर्मूलेज अभी आपको आइडिया नहीं है, बट जैसे जैसे हम इस चैप्टर्स को समझेंगे, इसको और डिटेल, जैसे मैं रिलेटिव रिस्क की अलग से क्लास लूंगा तब आप उसको ये फॉर्मूलेज आपको याद करने की जरूरत है, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑड रेशियो इज द सेम। अब देखो एक आपका अध्याय ये है, आप बोल रहे हैं अगर किसी में कैंसर है तो उसके होने की कितने % संभावना है, और अगर कैंसर है उसके अंदर इसके ना होने की कितनी % संभावना है। तो होने की संभावना को हम रिलेटिव रिस्क बोलते हैं, ना होने की संभावना को हम ऑड्स रिस्क बोलते हैं। इज इट? सर दोनों में हम प्रोबेबिलिटी ही देख रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये सारा खेल ही प्रोबेबिलिटी का है ना भाई, डिजीज में भी तो यही है। अब जिस आदमी का एक्सपोज हुआ जरूरी थोड़ी ना उन सबको डिजीज हो जाएगी,
तो मैंने आपको बोला था पहले ही कि हम जब एपिडेमियोलॉजी पढ़ते थे ये क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, यही ना पढ़ते हैं, है ना। तो आपको कहाँ हुआ तो आपको आंसर मिल जाएगा, भाई प्लेस के नाम पे हुआ। अच्छा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों भाई इसलिए हुआ क्योंकि आप बोल रहे हैं कि भाई वहां पे इस तरीके की चीजें थी जो आपके बस में नहीं थी, इसलिए वो हो गया। ओके, तो अल्टीमेटली आपका प्रिडिक्शन करने या प्रोबेबिलिटी को समझने का तरीका सेम है, ओनली थिंग इज कि आपका अप्रोच थोड़ा सा बदल जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so odds ratio, relative ratio can be best estimated by odd ratio if the following condition are fulfilled. अब आप उसको odd ratio और feminine ratio पे जब लेंगी तो आपको ये समझ आएगा कि relative ratio can be best estimated by odds ratio. Okay, वहां पे relative risk का best समझ आ जाता है जब आप odds ratio की के बारे में बात कर रहे हैं, because जो आपके कंट्रोल्स है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके जनरल पॉपुलेशन के, और जो पर्टिकुलरली केसेस आपने लिए हैं इन ऑर्डर टू मींस उसको वर्कआउट करने के लिए, वो भी आपका मतलब जो सिलेक्टेड केसेस है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एंड द थर्ड इज द डिजीजेस, ये कब हो सकता है जब आपके डिजीजेस रेयर होंगे ना, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होंगे, तब देन ओनली यू कैन यूज। इज इट क्लियर? यस, समझ आ गया? Sir. ओके, सो मैं इसको वापस स्टैट्स में आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि इसको डिजीज जब आप इसको मेजर करते हैं तो डिजीजेस के हम संदर्भ में देखते हैं कि ऑड्स रेशियो क्या है, रिलेटिव रिस्क क्या है। ओके, और इसके अलावा मतलब हमें ये नेक्स्ट है कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है। अब एट्रीब्यूट्स होता है कि हाउ मच ऑफ द रिस्क इज ड्यू टू द एट्रीब्यूट्स टू द एक्सपोजर, और जो जो आपने साइड चीजें वर्कआउट की हुई हैं उसके वजह से आपका कितना एक्सपोजर हो रहा है, वो एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। सो इट क्वांटिफाइज द ह्यूज रिस्क इन द एक्सपोज दैट फ्रॉम द एक्सपोज्ड, सो क्वांटिटी क्वांटिफाइज द एक्सेस रिस्क कि आपका कितना परसेंट रिस्क बढ़ जाता है। ओके, नॉर्मल केसेस में रिस्क है, बट अगर ये चीज साथ में ये लग जाए तो कितना परसेंट उसका रिस्क बन जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि रिस्क का क्या हमने बोला, इंसिडेंस, इसका इंसिडेंस रेट बताया। सो इंसिडेंस रेट एक्सपोज में कितना है माइनस इंसिडेंस रेट जो है वो नॉन एक्सपोज पे कितना है। सो इसको हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द रिस्क डिफरेंस, दैट इज ए इज इक्वल टू ए माइनस ए डिवाइडेड प्लस ए प्लस बी, और C डिवाइडेड बाई C प्लस डी। सो दैट मीन्स A हमने बोला था डिजीज एक्सपोज्ड है ना, B हमने बोला था A प्लस बी हमने बोला था बी भी उधर एक्सपोज्ड है और डिजीज भी है, तो एक्सपोज डिजीज और नॉन एक्सपोज्ड और डिजीज वो B आ जाएगा, है ना। और उधर हमने C प्लस डी के बारे में हमने बोला था कि भाई अगर एक्सपोज्ड है ये भी है तो उसको बीमारी हुई कि नहीं, तो उसके हिसाब से हमने एट्रीब्यूटेबल रिस्क या रिस्क डिफरेंस भी निकाल लेना। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what is attributable risk of 10 mean? So 10 of the exposed cases are attributable to exposure. That means by removing the exposure, one can prevent 10 cases from getting diseased. Right. ठीक है, तो ये है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज अमंग द एक्सपोज दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोजर। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ द डिजीज इन द एक्सपोज दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय एलिमिनेटिंग द एक्सपोजर। अब देखो एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज क्या हुआ कि कितना परसेंट चांस है कि आपका ये रिस्क हम हटा सकते हैं। तो भैया अगर आप उस जो रिस्क का जो कैटेगरी अगर वही हटा दोगे तो नेचुरली रिस्क भी कम हो जाएगा। So the proportion of the disease in the exposed that can be eliminated by the eliminating the exposure. So what is the idea? Idea is risk in exposed minus the risk in non-exposed multiplied by 100. Okay. तो जितना रिस्क एक्सपोज्ड होने में है, जितना रिस्क अनएक्सपोज्ड होने में है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो ये है ये आपका एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो ये हम कुछ चीजें जो है वो हम इसको और समझ लेंगे जब हम बेसिकली स्टैट्स पढ़ेंगे। तो अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगे क्योंकि आपको वन पार्ट ऑफ द स्टोरी पता है,
ठीक है, बट तो आपको बट ये चीज पता होना है कि कौन सा डिजीज नेग्लिजेंट है, कौन सा डिजीज कॉमन है, कौन सा डिजीज में क्या इश्यूज हैं, और उसके बाद में उसके एट्रिब्यूटेबल रिस्क कितने हैं और इसके नॉन एट्रिब्यूटेबल रिस्क कितने हैं. ओके, so today we have done up to slide number 75. Okay, so population attributable risk देखिए, risk in population minus risk in unexposed. So population के risk में expose करें या non population या exposed population के risk में वो करें, और जो population attributable risk है, या फिर उसको निकालने के लिए आपने बोला कि attributable risk multiplied by prevalence risk of exposure, तो तब भी उसको हम निकाल के दे सकते हैं. ओके, अब वो कैसे होगा, या आते कैसे वैल्यूज है, वो हम जब स्टैट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा. तो आपको तब ये इक्वेशन ज्यादा, अभी क्या है एटलीस्ट नाम भी पता हो कि एट्रिब्यूटेबल रिस्क होता है, आपकी ऑड्स रेशियो होती है आपका, और जैसे तो ये अलग अलग टाइप के रिस्क हैं. ओके, अब ये एसोसिएशंस हैं, खैर ये मैं आपको समझाऊंगा एसोसिएशंस. तो ये कॉजालिटी, तो वी हैव कंप्लीटेड अप टू स्लाइड नंबर 75, और स्लाइड नंबर 76 से हम फिर अगली क्लास में शुरू करेंगे. इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ओके, क्योंकि स्टडी डिजाइन, तो ये 19 स्लाइड 99 स्लाइड तक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर. अभी एक बार अगली क्लास में इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा आप और सर्च करके आइएगा, ताकि इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगली क्लास में मैं करीब आपका 75 है ना, 95 तक हम खींच डालेंगे. 95 90. ओके, Yes. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, Thank you, तो sir. आज Okay, sir. बेसिकली आपको मेरे को नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो ये बताना था, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. पैरामीट्रिक टेस्ट हम नॉमिनल ऑर्डिनल के लिए करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम नॉमिनल ऑर्डिनल के लिए करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट हम इंटरवल रेशियो वालों के लिए करते हैं. कौन सा डेटा इंटरवल है, कौन सा रेशियो है. ओके, और फिर हम एट्रिब्यूटेबल रिस्क और ऑड्स रेशियो और रिलेटिव रिस्क के बारे में हमने बात की. ओके, सो सी यू नेक्स्ट क्लास. ओके, अब हम Yes. बात करते हैं. थैंक यू सर. Thank you, बाय sir. बाय.